Hello my dear friends, my name is Ranjeet. Hopefully friends you all are good, you all are in the pink of health and your preparation of files is going on very well too. Good. Friends, this video is about IELTS writing task 2. In this video I'm going to help you with IELTS writing task 2 thesis statement. Question type is discuss both views and give your opinion. इस वीडियो में हम करेंगे थीसिस स्टेटमेंट. I'll teach you how to form, how to write thesis statement. Okay, you know thesis statement is of huge importance and it's included in introduction में होती है. After paraphrasing the question we write थीसिस स्टेटमेंट. ये बहुत ज़्यादा कुछ इसमें नहीं लिखना होता है. इसमें आपने इट्स सपोज टू बी क्लियर और शॉर्ट. ओके, शॉर्ट होनी चाहिए. और इसमें क्या क्या लिखना है, ओके, कौन कौन से वर्ड्स, ओके, क्या क्या लिखना है इसमें आपने each and every piece of information about it will be given to you in a detailed way in this video. So friends, आपको क्या करना, I request you to stay tuned with me until the last moment. That's when you will get benefits from this video. और इसके पहले मैंने वीडियोस अपलोड की हैं बिकॉज इससे थीसिस स्टेटमेंट से पहले हम पैराफ्रेज करते हैं और इसके बारे में मैंने एक वीडियो अपलोड की हुई है कैसे ऐसे को स्टार्ट करना है. तो वो अगर आपने यू हैवंट वॉच्ड इट सो फार, प्लीज़ गो टू माई चैनल्स प्लेलिस्ट वेयर यू विल गेट दिस वीडियो. एंड ऑल्सो इससे पहले मैंने थीसिस स्टेटमेंट कैसे फॉर्म करनी है, इफ़ क्वेश्चन टाइप इज़ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, तो उसके बारे में भी आपने अगर वो वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ नाउ instantly go to my channel's playlist where you will get this video too. Okay, so for the time being we are talking about, I'm going to tell you about how to form thesis statement which is included in introduction. If question type is discuss both views and give your opinion, इसकी thesis statement को कैसे form करना है for getting 7 band. Okay, so आपको क्या करना है, be all ears to me. And after watching this video, if you like this video, please share with other IELTS students so that they also can get benefits from this video. Now without wasting so much time, let's get started. First of all friends, we will learn synonyms of both views. जब फिर views, okay, view इसको आप replace किन किन word से आप replace कर सकते हो, synonyms इसके कौन कौन से हैं. Here I'm going to teach you so many words, so many synonyms of both views so that next time you are not confined to both views. You have a wide range of vocabulary to be used. Given two statements, okay, both views, given two, जैसे discuss both views and give your opinion. Some people think that this और others think that, जैसे दो statements हो गई ना, okay, तो given जो दी हुई है two statements, both views की जगह पे आप यूज़ कर सकते हो. व्यूज़ आइडियाज़ यूज़ कर सकते हो. पर्सपेक्टिव्स, बोथ पर्सपेक्टिव्स, ओके, बोथ नोशंस, बोथ असर्शंस, ओके, असर्शंस, बोथ assumptions, और बोथ beliefs, okay, both sides, ideas, perspectives, notions, assumptions, beliefs, sides, views, opinions, viewpoints or aspects. Okay, so any of these synonyms, okay, of both views you can use. व्यूज़ या फिर व्यू कहना है तो ये इनमें से कोई भी आप वर्ड यूज़ कर सकते हो. ओके, नाउ थीसिस स्टेटमेंट को कैसे फॉर्म करना है, लेट्स नो. Friends, here I'm going to tell you a variety of ways by which you can form thesis statement. Okay, if question type is discuss both views and give your opinion. So let's start with first one, have patience and be all ears to me. दिस ऐसे विल एक्सप्लेन, ये ऐसे एक्सप्लेन करेगा, या फिर डिस्कस, या फिर एग्जामिन, या फिर एनालाइज बोथ नोशंस, दोनों ही साइड्स को, बोथ नोशंस, बोथ पर्सपेक्टिव्स, बिलीव्स, स्टेटमेंट्स, दोनों ही स्टेटमेंट्स को डिस्कस करेगा बिफोर आर्ग्यूइंग इन फेवर ऑफ द लेटर वन. इट मीन्स के जो मेरा ओपिनियन है, ओके, आर्ग्यू
ये ऐसे पहले एक्सप्लेन करेगा, डिस्कस करेगा दोनों ही स्टेटमेंट्स को, नोशंस को, बिफोर किससे पहले आर्ग्यू करने के, सपोर्ट करने के इन फेवर ऑफ द लेटर वन, जो बाद वाली स्टेटमेंट है। इट मीन्स कि ये मेरा ओपिनियन है, मेरे ओपिनियन से पहले ये ऐसे क्या करेगा, डिस्कस करेगा, एक्सप्लेन करेगा दोनों ही नोशंस को। ओके, बिफोर आर्ग्यूइंग, इट मीन्स के आर्ग्यू करने के पहले, इन फेवर ऑफ किसके फेवर में, लेटर वन। इट मीन्स के मेरा जो ओपिनियन है आई इंक्लाइन टुवार्ड्स लेटर स्टेटमेंट। इट मीन्स के जो लेटर बिलीफ है मैं उसकी तरफ हूँ, सो वो उसकी तरफ आर्ग्यू करने से पहले ये ऐसे एक्सप्लेन करेगा दोनों ही नोशंस को। नाउ लीडिंग टू नेक्स्ट वन, दीज टू पर्सपेक्टिव्स या फिर साइड्स, ओके, या फिर जैसे बिलीफ्स, ओके, जैसे आपको अब सिनोनिम्स पता चल गए, इनमें से कोई भी आप यूज़ कर सकते हो। ओके, साइड्स, ओके, दीज टू पर्सपेक्टिव्स, बिलीव्स या फिर साइड्स विल, दोनों ही जो साइड्स हैं, स्टेटमेंट्स हैं, विल बी एनालाइज्ड पैसिव। ओके, विल बी, यहाँ पे हमने पैसिव, ओके, सो यूज़ किया, ओके, पैसिव वॉइस। These two perspectives, sides will be analyzed या फिर discussed, examined, कुछ भी आप यूज़ कर सकते हो, examined, explained, elucidated, okay, analyzed, examined, explored. These two perspectives will be analyzed, ये दोनों sides ही जो है डिस्कस की जाएंगी in the next अपकमिंग, फॉलोइंग, सब्सिक्वेंट, फर्दर जो आने वाले पैराग्राफ्स हैं, ओके, उनमें एनालाइज, डिस्कस किए जाएंगे दोनों ही जो पर्सपेक्टिव्स हैं, ओके, साइड्स हैं, किए जाएंगे इन द फॉलोइंग पैराग्राफ्स, बिफोर प्रोवाइडिंग या फिर फॉर्मिंग, बिफोर प्रोवाइडिंग या फिर फॉर्मिंग एन ओपिनियन, ओपिनियन जो मेरा अपना ओपिनियन है उसे फॉर्म करने से पहले, एज अ कंक्लूजन के तौर पे, ओके, जो कंक्लूजन में लास्ट पैराग्राफ में जो मेरा ओपिनियन है एज अ कंक्लूजन, वो फॉर्म करने से, उसे राइट करने से पहले ये जो सभी पर्सपेक्टिव्स हैं दोनों, जो सम पीपल थिंक दैट this and this is good or others think that this is good, okay, so दोनों ही जो sides हैं कि कुछ लोग ऐसे सोचते हैं और दूसरे ऐसे सोचते हैं, दोनों perspectives को एनालाइज किया जाएगा, एग्जामिन किया जाएगा, डिस्कस किया जाएगा, एक्सप्लेन किया जाएगा नेक्स्ट आने वाले पैराग्राफ्स में, बिफोर मेरा जो अपना ओपिनियन है एज अ कंक्लूजन उसे फॉर्म करने से या फिर प्रोवाइड, ओके, या फिर फॉर्म करने से पहले। ओके, नाउ लीडिंग टू मूविंग टू नेक्स्ट वन, दिस ऐसे ये ऐसे विल एक्सप्लोर, ये एक्सप्लोर करेगा, बोथ साइड्स, दोनों ही साइड्स को एक्सप्लोर करेगा, ओके, स्टडी करेगा, ओके, एक्सप्लोर करेगा, स्टडी करेगा, डिस्कस करेगा, एग्जामिन करेगा, एनी ऑफ दीज वर्ड्स यू कैन यूज हेयर। ओके, दिस ऐसे विल एक्सप्लोर बोथ साइड्स हाउएवर बट सपोर्ट, ओके, ये ऐसे एक्सप्लोर करेगा दोनों ही साइड्स को, दोनों ही पर्सपेक्टिव्स को, दोनों ही स्टेटमेंट्स को, ओके, हाउएवर बट जो सपोर्ट करेगा, सपोर्ट इट मीन्स के जो मेरा ओपिनियन है सपोर्ट करेगा, ये ऐसे सपोर्ट करेगा द फॉर्मर असर्शन, ओके, फॉर्मर असर्शन जैसे बिलीफ जो हो गया, अजम्पशन जो हो गई, बिलीफ स्टेटमेंट है जो फॉर्मर, इट मीन्स के जो पहले वाला एक फॉर्मर हो गया और दूसरा लेटर का मतलब बाद वाला, ओके, बाद में जो है दूसरी स्टेटमेंट है, और फॉर्मर जो पहले वाली स्टेटमेंट है। सो पहले वाली जो है असर्शन है, जहाँ लेटर जो जिसके भी आप फेवर में हो, जिसकी आप सपोर्ट करोगे, ओके, उसको आपने लिख देना है कि ये जो फर्स्ट वाला व्यू है, जहाँ सेकंड वाला व्यू है, उसे सपोर्ट करेगा ये ऐसे इन द लास्ट पैराग्राफ। सो ऐसे भी आप थीसिस स्टेटमेंट लिख सकते हो। नाउ moving to next one, that is although both aspects, although भले ही दोनों जो aspects हैं, although both aspects, assertions, beliefs, assumptions, इनमें से कोई भी आप वर्ड यूज कर सकते हो, beliefs, sides, perspectives, hold इट मीन्स के पकड़े हुए हैं, ओके,
कैरी करते हैं। ऑल्दो बोथ एस्पेक्ट्स assertions assumptions होल्ड देयर ओन सिग्निफिकेंस। ऑल्दो भले ही दोनों जो एस्पेक्ट्स हैं, दोनों ही साइड्स हैं, ओके, दोनों ही जो स्टेटमेंट्स हैं, बिलीफ्स हैं, कुछ लोग ऐसा सोचते हैं और कुछ लोग ऐसा, दोनों ही जो बिलीफ्स हैं दोनों ही कैरी करते हैं ह्यूज, ओके, दोनों ही होल्ड पकड़े हुए हैं, दोनों की, इट मीन्स के देयर ऑन सिग्निफिकेंस, उनकी अपनी सिग्निफिकेंस है, अपनी इम्पोर्टेंस है, दोनों ही इम्पोर्टेंट है, आई मीन टू से, इसका मतलब ये होता है होल्ड देयर ऑन सिग्निफिकेंस। माई इंक्लिकेशन, कॉमा लगाकर, माई इंक्लिकेशन जो मेरा झुकाव है, ओके, झुकाव होना, इंक्लिकेशन इट मीन्स के झुकाव होना, ओके, माई इंक्लिकेशन इज टुवार्ड्स फॉर्मर या फिर लेटर, जो बाद वाली या फर्स्ट वाली जो बाद वाली, ओके, व्यू पॉइंट। तो मेरा जो झुकाव है किसकी तरफ है, फॉर्मर व्यू की तरफ, ओके, जो भी आप जिसकी तरफ, ओके, जिसकी फेवर में हो। बोथ परस्पेक्टिव्स विल बी एक्सप्लोर्ड, दोनों ही पर्सपेक्टिव्स हैं विल बी एक्सप्लोर्ड, जे एक्सप्लोर किए जाएंगे, या फिर विल बी एड्रेस किया जाएगा, एक्सप्लोर किया जाएगा, ओके, एग्जामिन किया जाएगा, एक्सप्लोर्ड, ओके, डिस्कस किया जाएगा, एक्सप्लेन किया जाएगा, दोनों ही, बोथ पर्सपेक्टिव्स विल बी एक्सप्लेन्ड, एक्सप्लोर्ड, स्टडीड इन द सब्सिक्वेंट पैराग्राफ्स, आने वाले अपकमिंग पैराग्राफ्स में, बिफोर जस्टिफाइंग वाई, ओके, बिफोर जस्टिफाइंग वाई, ये वाई है फ्रेंड्स, ओके, वाई माई इंक्लिकेशन इज टुवार्ड्स फॉर्मर व्यू पॉइंट। बोथ पर्सपेक्टिव्स, दोनों ही साइड्स को एक्सप्लोर किया जाएगा, एक्सप्लेन किया जाएगा, डिस्कस किया जाएगा इन द सब्सिक्वेंट पैराग्राफ्स, जो आने वाले पैराग्राफ्स हैं उनमें, ओके, दोनों को एक्सप्लोर किया जाएगा। बिफोर जस्टिफाइंग, क्या जस्टिफाई करने से पहले, माई इंक्लिकेशन, मेरे झुकाव को, कि क्यों, ये जस्टिफाई करने से पहले कि क्यों मेरा झुकाव है, वाई माई इंक्लिकेशन इज टुवार्ड्स फॉर्मर व्यू पॉइंट या फिर लेटर व्यू पॉइंट, कि मेरा लेटर व्यू पॉइंट है जो, ओके, उसकी तरफ क्यों इंक्लिकेशन है, मैं उसे वाई आई एम इन द फेवर ऑफ फॉर्मर व्यू पॉइंट या फिर लेटर व्यू पॉइंट के, क्यों मैं सपोर्ट करती हूँ फॉर्मर व्यू पॉइंट को या फिर लेटर व्यू पॉइंट को, ओके। सो ये इसमें जस्टिफाई किया जाएगा, ओके, क्या करने के बाद, दोनों पर्सपेक्टिव्स को एक्सप्लोर, डिस्कस करने के बाद इन द सब्सिक्वेंट पैराग्राफ्स, ओके, या फिर इन द upcoming paragraphs. So both perspectives will be explored in the subsequent paragraphs before justifying why my inclination is towards former viewpoint या फिर later viewpoint. ऐसे भी आप फ्रेंड्स लिख सकते हो, दिस essay will address या फिर analyze both mentioned beliefs, ये ऐसे एड्रेस करेगा, डिस्कस करेगा या फिर एक्सप्लेन करेगा, एनालाइज करेगा, एनी ऑफ दीज वर्ड्स यू कैन यूज हेयर, ओके, जो मैंने आपको सिनोनिम्स बताए हैं ना, ओके। तो जैसे डिस्कस, एक्सप्लेन, एक्सप्लोर, एड्रेस, एनालाइज, ओके, इनमें से कोई भी आप वर्ड यूज़ कर सकते हो यहाँ पे। दिस ऐसे विल एड्रेस या फिर एनालाइज बोथ मेंशन्ड बिलीव्स, दोनों बिलीव्स को, स्टेटमेंट्स को, पर्सपेक्टिव्स को ये एड्रेस करेगा, बिलीव्स को जो स्टडी करेगा, डिस्कस करेगा, ये ऐसे। एंड as far as my opinion is concerned, now I'm going to tell you about my opinion, okay। अब मैं अपने ओपिनियन के बारे में, ओके, इस ऐसे में बताऊंगी। इट मीन्स के पहले आपने बता दिया कि ये ऐसे एड्रेस करेगा, एनालाइज करेगा दोनों ही बिलीव्स को, एंड इसके बाद मैं बता रही हूँ, आई एम गोइंग टू टेल कि एज फार एज माई ओपिनियन इज कंसर्न, कि जहाँ तक मेरे ओपिनियन का, जैसे डिस्कस बोथ व्यूज एंड गिव योर ओपिनियन, ओके। सो यहाँ तक मेरे ओपिनियन की, मेरे थिंकिंग की बात है, ओके, मेरे ओपिनियन का सवाल है, की बात है। आई इंक्लाइंड टुवार्ड्स, मैं झुकती हूँ, इट मीन्स के मैं सपोर्ट करती हूँ, आई इंक्लाइंड टुवार्ड्स फॉर्मर व्यू या फिर लेटर व्यू, ओके, जिसकी आप सपोर्ट करते हो। या फिर आप लिख सकते हो एज फार एज माई ओपिनियन इज कंसर्न्ड, आई एम इन द फेवर ऑफ, जो भी आप, जिसको आप फेवर कर रहे हो।
आगे या फिर ऐसे लिख सकते हो, एज फार एज माई ओपिनियन इज कंसर्न आई स्टैंड विद दोज फोक्स या फिर दोज मासेस या फिर दोज पीपल. ओके, एज फार एज माई ओपिनियन इज कंसर्न आई स्टैंड विद दोज फोक्स या फिर मासेस या फिर पीपल या फिर इंडिविजुअल्स. ओके, इंडिविजुअल्स हु से दैट. जहाँ तक मेरे ओपिनियन का सवाल है कि बात है, मैं स्टैंड, मैं उनके साथ हूँ, उन लोगों के साथ हूँ, उन इंडिविजुअल्स के साथ हूँ जो कहते हैं कि ओके. आगे आपने लिख देना है वट एवर इज़ गिवन इन द क्वेश्चन. ओके, वट एवर इज़ बीइंग आस्क्ड. ओके, वट एवर इज़ बीइंग सेड ओके बाय सम पीपल या फिर अदर पीपल. ओके, जो उनके द्वारा कहा जा रहा है. ओके, आगे फॉर्मर असर्शन या फिर एज फार एज माई ओपिनियन इज कंसर्न, फॉर्मर असर्शन या फिर फॉर्मर व्यू, फॉर्मर स्टेटमेंट, फॉर्मर अजम्पशन, फॉर्मर व्यू पॉइंट. ओके, जो फॉर्मर इट मीन्स के पहले वाला जो है, पहले वाला असर्शन है, जो पहले जो फर्स्ट वाले लोग, जो सम पीपल, जो फर्स्ट नंबर पे स्टेटमेंट है वो. फॉर्मर स्टेटमेंट सीम्स टू बी सेंसिबल. ओके, एज फार एज माई ओपिनियन इज कंसर्न, जहाँ तक कि मेरा ओपिनियन है, ओपिनियन की बात है, फॉर्मर मुझे लगता है कि फॉर्मर असर्शन जो फॉर्मर स्टेटमेंट है सीम्स टू बी प्रतीत होती है, लगती है, सेंसिबल. सेंसिबल. ओके, सेंसिबल मीन्स प्रैक्टिकल है, रियलिस्टिक है, ओके, रीजनेबल है. ओके, सो यहाँ तक मेरे ओपिनियन की बात है, जो फॉर्मर असर्शन है ये seems to be sensible. So friends, that's all about this video. If you like this video, please hit the like button, and also if it's possible, please share with other IELTS students. Thanks for watching and happy learning.